Hello children, let us understand chapter 4.2 of Fashion Studies of class 12. The topic is cutting preliminaries, as in cutting prelims is what we need to understand in this particular chapter. So what are cutting prelims? Cutting prelims basically mean the preparation of fabric before cutting. What all things need to be taken care when you are planning to cut the fabric. So it's not just you get the fabric from the market and you get started with cutting the fabric, but there are certain set of steps or precautions that need to be taken before you start cutting the fabric. So let us get started in understanding the same. So the very first step is fabric preparation. और फैब्रिक प्रेपरेशन करने के लिए क्या करना होता है, आपको फैब्रिक को पहले वॉश करना है या ड्राई क्लीन करना है. वॉट एवर काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट्स गिवन ऑन टू द फैब्रिक, you have to follow that for washing or maintenance of the fabric. So before we get started with cutting the fabric, we need to wash the fabric or clean the fabric. And then we would move to the next step of placing it onto the surface of a cutting table and then cutting. So fabric preparation, an essential step before starting to construct the garment is fabric preparation. It is to prepare fabric before cutting in order to achieve a better fit and professional look. Different fabrics will need different care, and the labels on the fabric bolt will provide information like whether the fabric is washable, dry cleanable, or if it will shrink. So fabric bolt क्या होता है, जिस wooden board के around आप उसको roll कर देते हो fabric को, that is a bolt. कई बार आप ट्यूब के अराउंड रोल करते हो, कई बार आप एक गत्ते का, एक कार्डबोर्ड का एक रेक्टेंगुलर पीस होता है, उसके अराउंड रोल करते हो. So they are all that is basically called as a fabric bolt. और जब हम बोल्ट से फैब्रिक निकालते हैं तो आपने भी शायद नोटिस किया होगा, उसके ऊपर कुछ प्रिंट होता है, इंफॉर्मेशन प्रिंट हुई होती है. उस इंफॉर्मेशन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एक लिखा होता है उसमें the content of this fabric, as in कितना % of which fiber is mixed to make this fabric. उसके अलावा उसमें उसकी वॉश केयर इंस्ट्रक्शन भी लिखी होती है, लाइक ये फैब्रिक मशीन वॉश के लिए है, हैंड वॉश के लिए है, ड्राई क्लीन के लिए है, ये इंफॉर्मेशन भी उस पर लिखी होती है. द लेबल्स दैट आई हैव प्लेस्ड हियर, ये वाले लेबल्स गारमेंट्स पे हम लोगों को मिलते हैं, और वो ये लेबल्स हमें गारमेंट पे इसलिए मिलते हैं बिकॉज द गारमेंट मैन्युफैक्चरर ही रीड्स द इंस्ट्रक्शन दैट्स गिवन ऑन द बोल्ट. उसके बाद में वो इवन उस फैब्रिक को टेस्टिंग के लिए भेजता है, एंड वंस ही गेट्स द रिपोर्ट ऑफ दैट टेस्ट, ही देन फाइनलाइजेस कि वो इस पर्टिकुलर गारमेंट को या फैब्रिक को उसने ड्राई क्लीन करना है या फिर उसने उसको वॉश के लिए इंस्ट्रक्शंस प्लेस करनी है उसके. The label should carry information whether the fabric has been pre-shrunk by the manufacturer or if it will shrink and how much it will shrink. अब श्रिंकिंग का क्या होता है, कई बारी जो होता है फैब्रिक हमारे पास में आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और हम उस फैब्रिक को वॉश करते हैं. जब हम वॉश करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है इनिशियली, तो लेबल के ऊपर ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो पहले से ही श्रिंक करके हमने आपको दिया है, और एल्स वो ये होना चाहिए कि ये फैब्रिक श्रिंक करेगा, आप जब वॉश करोगे तो ये श्रिंक करेगा. सो आप पैटर्न अपना उसके अकॉर्डिंगली बनाना, जिससे कि आपका गारमेंट जब बनेगा, आप उसको फाइनली वॉश करोगे तो वो गारमेंट का साइज छोटा ना हो जाए. सो अगर वो श्रिंक के लिए लिखता है कि इट विल श्रिंक, देन इट शुड ऑल्सो मेंशन कि वो कितना श्रिंक करेगा, 1%, 2%, 10%. लाइकवाइज वो उस पर मेंशन होना चाहिए. सो पैटर्न कटर जो होता है, पैटर्न मास्टर होता है, वो उस श्रिंकेबिलिटी को अपने माइंड में रखता है और वो पैटर्न अकॉर्डिंगली बनाता है. To pre-shrink washable fabric, simply soak, wash and dry in the same manner as one would do it after the garment is finished. So
whenever, in industry we talk about shrinking the garment, it is like a regular wash care cycle that is followed. कई बार हम उसको soak करके overnight रख देते हैं पानी में, and then we wash it in a washing machine, या सिर्फ उसको rinse कर लेते हैं. Again, this is all dependent on what kind of instructions you have got. To pre-shrink dry cleanable fabrics, use a steam iron and move the iron horizontally or vertically across the grain of the fabric. Never press fabric diagonally as this will distort the fabric. देखो, एक जनरल रूल होता है कि आपका जो फैब्रिक है उसमें जब लेंथ में आप वर्टिकली उसको स्ट्रेच करते हो उसमें कम स्ट्रेच होता है. जब आप उसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करते हो तो उसमें वर्टिकली से ज्यादा स्ट्रेच होता है, और जब आप उसको डायगोनली स्ट्रेच करते हो तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है. सो इसीलिए जब भी आपको अगर एक फैब्रिक है जो जिसकी इंस्ट्रक्शन है ड्राई क्लीन ओनली, सो देन इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो आपको उसको प्री श्रिंक तो करना पड़ेगा, बिकॉज उस फैब्रिक का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है. सो फॉर दैट पर्टिकुलर केस आपको एक स्टीम आयरन लेना है. आपको इसको डायरेक्टली वाटर से में नहीं सोक करना, आपने स्टीम आयरन लेना है और आपने फैब्रिक को जो है आयरन करना है. एंड जब आप आयरन को मूव करेंगे तो या तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करें, दैट इज पैरेलल टू द सेल्वेज ऑफ द फैब्रिक, या आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करें, बट कभी भी डायगोनली नहीं मूव करें. डायगोनली मूव करेंगे तो फैब्रिक की शेप खराब हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी. After steaming the fabric, allow it to dry on a smooth, flat surface until completely dry. So, because ये फैब्रिक की शेप डिस्टॉर्ट ना हो जाए, इसीलिए स्टीम प्रेस करने के बाद में थोड़ा सा गीला हो जाएगा वो, तो उसको फ्लैट ही आपने कहीं पे प्लेस करना है जहाँ पे वो ड्राई हो जाए. 4 से 6 घंटे उसको अच्छे से ड्राई होने देना है, एंड देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. अब गारमेंट्स के ऊपर कुछ ट्रिम्स होते हैं जैसे बटन्स, लेसेस, सॉरी लेसेस एंड जिपर्स. बटन्स तो फास्टनर्स की कैटेगरी में आते हैं. तो जो ट्रिम्स होते हैं आप उनको भी प्री श्रिंक करके ही अटैच करते हैं गारमेंट पे. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि गारमेंट का जो फैब्रिक है वो तो वहीं का वहीं है, बट जहाँ पे आपके जिपर अटैच किया है या लेस अटैच किया है उसके श्रिंक होने की वजह से वो सुकड़ गया है, उसके अराउंड जो एरिया है वहां पर गैदर्स आ गए. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग जिपर्स एंड लेसेस. उनको हमेशा प्री श्रिंक करके ही यूज करना है. प्रॉपर फैब्रिक प्रिपरेशन इज एन एसेंशियल प्रिलिमिनरी टू कटिंग. Understanding of the fabric and its properties is a must, since fabric is the most important component of any garment. In weaving, warp or fixed yarns are interlaced at right angle by filler or weft yarns. We need to be very clear कि जब भी आप फैब्रिक प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज फैब्रिक एक मेन कंपोनेंट है, और आपके गारमेंट की कॉस्ट में भी इफ यू नोटिस फैब्रिक का जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा होता है. देन वुड बी द ट्रिमिंग्स, फास्टनर्स, and then would be the labor cost and overheads. So that is how we calculate it. Well, so what is important here to understand is कि फैब्रिक की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. प्रॉपर्टीज इन रिस्पेक्ट टू श्रिंकेबिलिटी, प्रॉपर्टीज इन रिस्पेक्ट टू कलर ब्लीडिंग, कि अगर फैब्रिक कलर ब्लीड करता है, वो कलर्स को अच्छे से नहीं अब्जॉर्ब करता, सो देन ऑल द इंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी ऑल्सो गिवन ऑन टू द वॉश केयर लेबल ऑफ दिस पर्टिकुलर गारमेंट. अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे सेल्वेज. सेल्वेज बेसिकली टर्म जो है यूज करते हैं वोवन फैब्रिक्स के लिए. वोवन आर जिन फैब्रिक्स में एक वॉप यार्न होता है और एक वेफ्ट यार्न होता है, एंड दे आर बोथ इंटरलेस्ड टुगेदर at right angles to each other. Now, selvage is derived from this particular term, that's self edge. So अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इस फैब्रिक की जो फिनिश्ड एज है, that is the selvage of this fabric. So और ये पूरी लेंथ के अराउंड, उसकी लेंथ के पैरेलल ही मूव करती है woven fabrics में. After this we have another term, that's grain. So grain क्या होता है? Grain basically fabric के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं. So grain is the direction of the yarn
on a fabric. और yarns दो डायरेक्शन में होते हैं वोवन फैब्रिक में, एक लेंथ में और एक क्रॉस में. So you have lengthwise threads and you have the crosswise threads. So lengthwise grain क्या होता है? Lengthwise grain is the grain that runs parallel to the selvage. Selvage के बिल्कुल parallel चलता है और वो पूरी length में उसके parallel, जितनी length है fabric की उतना ही लंबा आपका yarn होगा, right? And this particular yarn has very least amount of stretch. Then the next grain is a crosswise grain. Crosswise grain is a grain that runs perpendicular to the selvage. या फिर horizontal direction में जो run करता है वो crosswise grain होता है. And the yarn that runs in this direction is the weft yarn. अब इस particular direction में stretch थोड़ा ज़्यादा होता है in comparison to the lengthwise grain. Crosswise grain is used vertically only to achieve a certain design effect, as in border print placements. So crosswise, otherwise हम जो है garments हम lengthwise ही cut करते हैं. कहीं पे आपको कुछ border में कुछ design add करना है तो आप crosswise cut करते हो. Apart from that, crosswise grain fabric पे हम cut करते हैं कुछ garment के parts जैसे collars, cuff, shirt yoke. ये सब हम क्रॉसवाइज ग्रेन में कट करते हैं. द लास्ट वन इज अ डायगोनल ग्रेन. डायगोनल ग्रेन जो है डायगोनली फैब्रिक में रन करता है. दैट इज एनीथिंग इन बिटवीन द लेंथवाइज एंड द क्रॉसवाइज ग्रेन इज द डायगोनल ग्रेन. और इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेच होता है. A bias cut garment usually drapes softly. It also tends to be unstable at the hemline. So इसका जो फॉल होता है गारमेंट का, जो गारमेंट या गारमेंट पार्ट तभी कट ऑन अ बायस ग्रेन, बहुत अच्छा ड्रेप आता है, बहुत अच्छा फॉल आता है इसका. सो आई गिव यू एग्जांपल्स जिससे यू विल बी एबल टू understand this particular direction of the grain. And the examples are like you have lehengas or the flared skirts or the flared sleeves. ये सब आपके 22 ग्रेन पे कट होते हैं. तो लहंगा जो होता है उसका फॉल एकदम कितना अच्छे से आता है. गाउन्स हम लोग कई बार 22 ग्रेन में कट करते हैं व्हेन वी आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड फॉल और द ड्रेप ऑफ दिस पर्टिकुलर गारमेंट. So they're all cut on a bias, that is a diagonal grain of a woven fabric. So here you can see in this picture, you have the fabric and the yarns are running in both the directions, length and the cross. So lengthwise direction में जो finished edge है, that is the selvage. और selvage दोनों तरफ होती है. So एक left side पे होगी और एक उसके ही parallel right side पे भी run करती है. And the yarn that runs in this direction is the warp yarn. Crosswise direction ये है horizontal, और यहाँ पे जो yarn run करता है, that is basically a crosswise yarn or a weft yarn. और फिर आता है आपका diagonal, that is the bias grain. There is pre-shrinking. So हमने fabric preparation में सबसे पहला उसका instructions पढ़ना है कि bolt पे या fabric के ऊपर क्या information लिखा है in respect to washing or dry cleaning the fabric. Then is shrinkability, कि वो shrink करता है, नहीं करता है तो कितना करता है. So pre-shrinking is very important. और किस मटेरियल में important है? कॉटन में. कॉटन we have also noticed, हम लोग भी पहनते हैं कॉटन, और कॉटन में प्रॉब्लम shrinkability की होती है. वो कई बारी you must have noticed that you get some top or a kurti or a shirt, you wear it, and when you wash it, तो उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है. तो ऐसा प्रॉब्लम तब आता है जब जो ब्रांड है they did not take care of this shrinkability aspect. So some fabrics have inherent character of being prone to shrinking, and the example that's given is cotton. It is advisable that when sewing these fabrics, care should be taken to check the fabric shrinkage. So a small
सैंपल इज कट 25 सेंटीमीटर्स, हम फैब्रिक को कट कर लेते हैं बोल्ट में से और हम उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. बट दिस हैपन्स जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं, द मैन्युफैक्चरर्स जो वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड और देयर ओन ब्रांड, तो उनको ये पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ते हैं. There is no fixed percentage that can be attributed as to how much a given fabric would shrink. तो जब तक आप उसका एक छोटा सा सैंपल टेस्ट नहीं करते, आपको नहीं पता चलता, उसको देख के नहीं पता चल सकता किसी को भी कि ये फैब्रिक कितना श्रिंक करेगा. The fabric characteristics can also be determined by the yarn and fabric construction. Hence, no one formula can be given for determining the exact percentage of shrinkage. So, just looking at the characteristics, we can say, हाँ cotton है, cotton shrink करेगा. उसकी कंस्ट्रक्शन जैसी है, उससे लग रहा है कि वो श्रिंक करेगा, पर कितना करेगा वो हम नहीं बता सकते जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करते. To pre-shrink washable fabrics, launder and dry it. It is recommended to soak cotton fabric in cold water overnight before cutting. तो क्या रूल क्या कहता है, अगर कोई मटेरियल श्रिंक होता है उसको वॉश करो, लॉन्डर करो और फिर उसको ड्राई करके आयरन करिए, जिससे कि उसके अंदर अगेन कोई फोल्ड्स या रिंकल्स नहीं हो, एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कटिंग. अगर कॉटन मटेरियल स्पेसिफिकली है तो उसको ओवरनाइट सोक करना है कोल्ड वाटर में, फिर आयरन करना है फैब्रिक को अच्छे से, एंड यू हैव टू सी दैट देयर आर नो फोल्ड्स ऑन द फैब्रिक, बिकॉज अगर फोल्ड्स होंगे और वो कटिंग में भी चले जाएंगे, स्टिचिंग में चले जाएंगे, तो वो गारमेंट की फिट को अल्टीमेटली अफेक्ट करेंगे. दिस टेक्निक विल टेक केयर ऑफ श्रिंकेज एंड ऑल्सो ऑफ कलर ब्लीडिंग इफ रिक्वायर्ड. सो जब आपने श्रिंक किया, उसको सोक किया पानी में, आपको तभी पता चल जाएगा कि वो कलर ब्लीड कर रहा है कि नहीं. सो कलर ब्लीडिंग इज जब कलर निकलता है उसमें से, गारमेंट में से, फैब्रिक में से. तो कलर ब्लीडिंग भी आपको पता चल जाएगा जब आप उसको सोक करोगे पानी में. इन केस द कलर ऑफ द फैब्रिक रन्स, पुट कलर फिक्सर. तो एक सोल्यूशन तो ये है कि आप कलर फिक्सर्स कुछ रेडी मार्केट में मिलते हैं, वो ले सकते हो, और वो आप उस बकेट में जिसमें आप उसको सोक कर रहे हो उसमें डाल सकते हो, जिससे कि कलर ब्लीडिंग नहीं हो. A number of brands are available in the market or can be fixed with a home mix. Home mix क्या बनाना है, आपने एक आधी बाल्टी पानी लेना है, उसके अंदर 1 कप वाइट विनेगर डालना है और 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालना है, एंड ये आपका होम मिक्स बन गया कलर फिक्सर. अब आप इसके अंदर सोक कर दो अपने गारमेंट को, निकालो, स्क्वीज करो, एंड देन यू पुट इट फॉर ड्राइंग. अब जहाँ पे वूलन्स कंसर्न है या सिल्क की कंसर्न है, तो वी ऑलरेडी नो कि हम उनको ड्राई क्लीन ओनली ऑप्शन में प्लेस करते हैं. सो व्हेन यू बाय वूलन गारमेंट्स और गारमेंट्स मेड ऑफ सिल्क, we are very much prepared that we need to get it dry cleaned from market. So woolens should be dry cleaned if one is not sure that they can be hand washed. Silk too should be dry cleaned until one is absolutely sure about the washability of the fabric. All synthetic fabrics should be pre-soaked in cold water and then ironed to remove all folds and creases before cutting. So यहाँ पे किसका mention है? Color bleeding के लिए और shrinkability के लिए cotton का है. Then you have wool, then you have silk, and then you have synthetics. So cotton में shrinkability के लिए soak कर दो उसको पानी में, ठंडे पानी में overnight, right? अगर color bleed होता है cotton में, so then in that case आप या तो एक color fixer ले सकते हो मार्केट से और उसमें आप उसको सोक कर सकते हो. अदरवाइज द अदर ऑप्शन इज कि आप एक होम मिक्स बना लो. होम मिक्स कैसे बनेगा? एक बाल्टी में आधे बाल्टी पानी लेना है, प्लेन वाटर, उसमें 1/2 कप व्हाइट विनेगर डालना है और उसमें 1 टेबल स्पून आपने सॉल्ट डालना है. अब ये मिक्स के अंदर सोक कर दो गारमेंट को या फैब्रिक को, एंड देन यू वॉश इट विथ प्लेन वाटर. अगर वुलन्स है या सिल्क है, वी आर वेरी क्लियर, उस पर सिंपली इंस्ट्रक्शन प्लेस करना है ड्राई क्लीन ओनली. नेक्स्ट है सिंथेटिक्स. सिंथेटिक्स में क्या है?
सिंपल रूल फॉलो करना है उनको. नॉर्मली तो सिंथेटिक्स डोंट श्रिंक, बट स्टिल जस्ट टू चेक कि वो श्रिंक हो रहा है कि नहीं, पता चले उसके अंदर कोई कंटेंट ऐसा है लाइक सिंथेटिक के साथ में कोई कॉटन के जैसे फाइबर ऐड करा है. सो वी विल गेट टू नो हियर. आप उसको सोक कर दो कोल्ड वाटर में ओवरनाइट, एंड देन बाय मॉर्निंग यू विल बी एबल टू नो कि क्या स्टेटस है फैब्रिक का. If both shrinking and grain alignment are necessary, pre-shrink first and then realign grain. Steam-iron fabric that are wrinkled or have crease lines. So अगर आपने नोटिस किया कि आपका फैब्रिक श्रिंक भी हो सकता है और उसमें कुछ ग्रेन अलाइनमेंट का भी प्रॉब्लम है. ग्रेन अलाइनमेंट मतलब कि जो फैब्रिक है वो ऑन ग्रेन नहीं है. Now what exactly is on grain? On grain fabric is one that has both warp and weft yarns moving or flowing in the perpendicular direction to each other. दोनों yarns एक दूसरे के perpendicular है, वो एक on grain fabric होता है. But in case the grain line is not on grain, वो off grain कहलाता है जब वो perpendicular नहीं होता. So we will understand that. So blocking off grain fabric. First thing one needs to ensure is that fabric is on grain. Fold the fabric in half lengthwise direction, and what we need to do is हमें फैब्रिक की जो सेल्वेज है दोनों साइड्स की वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करनी है. जब आप ऐसे उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हो और जब आप उसको फ्लैट करना शुरू करते हो फ्रॉम द साइड टू द सेंटर, आपको पता चल जाता है कि वो ऑन ग्रेन है कि नहीं है. सो ऐसे करने से क्या होगा, अगर वो बबल अप हो रहा है, रेज्ड आ रहा है फैब्रिक, वो फ्लैट ले नहीं कर रहा, दिस मीन्स दैट द फैब्रिक इज नॉट ऑन ग्रेन. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन चेक द फैब्रिक वेदर इट इज ऑन ग्रेन और नॉट. सो ये जो सैंपल्स हैं इधर फैब्रिक के, ये ऑफ ग्रेन है. इधर आप देख सकते हो कि जो दोनों डायरेक्शन के यार्न्स हैं, या तो वो डायगोनली जा रहे हैं एक दूसरे के, मतलब जो वॉप है वो तो स्ट्रेट है दोनों में, बट जो वेफ्ट है वो डायगोनल है, और दूसरे केस में वो कर्व्ड है. बल्कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, एज इन हॉरिजॉन्टल पूरा होना चाहिए. सो दैट इज व्हाई दिस इज एन ऑफ ग्रेन फैब्रिक. नाउ हाउ डू वी करेक्ट द ऑफ ग्रेन फैब्रिक? The term that's used for correcting the off-grain fabric is called as blocking the fabric. So blocking term use करते हैं off-grain fabric को correct करने के लिए. So ये largely जो technique है, this is followed in case of woven fabrics. So woven fabrics में हम क्या करते हैं, हम जो fabric pull करते हैं diagonally, एक बारी राइट साइड से एक बारी लेफ्ट साइड से, सेल्वेज वाली साइड से पुल करते हैं, राइट. और फिर हम उसको आयन करते हैं जिससे कि वो करेक्ट हो जाए. ठीक है. अगर वो ओपन वीव वाला फैब्रिक है जिसमें वीविंग काफी ओपन है, सो आप सिर्फ उसको पुश करने की कोशिश करते हैं, जो थ्रेड्स है, जो यार्न्स है, उनको एक साइड पे जिससे वो स्ट्रेट हो. बट अगर वो ओपन वीव वाला फैब्रिक नहीं है, so then in that case this is the method that's followed. So for correction of off grain fabric, pull it diagonally at opposite ends. So एक visual देख लेते हैं, एक picture देख लेते हैं इसको समझने के लिए. So this is the fabric. Now here you can see the stripes are not in vertical, they both the stripes, that is the horizontal and the vertical, are not perpendicular to each other. थोड़ा सा वो curve form हो रहा है इसमें. Now this particular thing can be corrected. और वो कैसे होगा, जैसे you can see the same color arrows here. So the ones that are of orange color, basically आपको उन दोनों को इकट्ठा पुल करना है diagonally ऐसे. Then you have to consider the blue ones. So आपको दोनों तरफ से इकट्ठा पुल करना है diagonally in the other direction. So this will help you correct the off grain fabric. इस पर्टिकुलर टेक्निक को ब्लॉकिंग बोलते हैं. इसके बाद में आपको उसको आयन करना है, एंड देन यू नीड टू चेक इट अगेन. Again, when you can try doing this 2-3 times to correct the grain of the fabric, but let me tell you,
not 100% we are able to make a change on this. But whatever the case be, आप जितनी लाइंस आप स्ट्रेट जितना तक कर सकते हैं, हम वहां तक फिर हमें कट करना पड़ता है फैब्रिक. सो इन दिस पर्टिकुलर केस फैब्रिक वेस्टेज भी काफी हो जाती है. So to straighten slightly off green fabric, leave fabric folded lengthwise and pin together the selvages and both ends, making sure they line up. Then using a steam iron press from the selvage to the fold. So इधर जो नीचे फैब्रिक है, कंसिडर कि इसका जो अपर साइड है उसमें सेल्वेज है और मैंने दूसरा वाला भी साइड सेल्वेज का इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया. ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर जहां स्केल है वहां पे दोनों सेल्वेज वाली साइड्स ओवरलैप हो रही है. नाउ आफ्टर दिस, अगर आप उसको थोड़ा सा इस पे टेक्निक क्या फॉलो करते हैं कि दोनों को ओवरलैप करते हैं सेल्वेज को, और फिर आप जो सेंटर है जहाँ पे फोल्ड हुआ हुआ है फैब्रिक वहां तक आप आयन करते हैं. तो आयन करते जाते हैं तो यू आर एबल टू सी कि अब वो फ्लैट हो रहा है. अगर अभी भी बबल अप हो रहा है, दिस मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर मटेरियल कैन नॉट बी we cannot work further on this material, we cannot correct it anymore. And why is it important to block the fabric? क्या होता है कि अगर एक फैब्रिक स्ट्रेट नहीं है, उसका ग्रेन पैरेलल नहीं, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं है, सो व्हाट हैपेंस कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गारमेंट कहीं से हैंग होने लगता है अनइवनली. कई बार यू मस्ट हैव आल्सो नोटिस कि बैक साइड से गारमेंट थोड़ा हैंग हो रहा है जबकि लेंथ दोनों की बैक और फ्रंट की बराबर थी, या साइड से राइट या लेफ्ट साइड से वो ज्यादा हैंग हो रहा है. एंड इट इज ऑल बिकॉज this was an off-grain fabric that was used to construct this garment. Now, different fabrics require different methods. जो knitted material है उसको आपने सिर्फ क्रॉसवाइज रिप पे कट करना है. दैट इज द ओनली थिंग दैट्स पॉसिबल. निट्स में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते टू करेक्ट द ग्रेन. On striped fabrics or plaids or checkered fabrics, simply cut along a straight crosswise line. So जैसे ये checkered material है, आपने देखना है कि कहाँ से straight line है और आपने उसको सीधे वहां से कट कर देना है. You cannot do much with these kind of materials. So we have learned very first thing, and that was fabric preparation, wherein we learned about washing or dry cleaning of fabric, pre-shrinking of fabric. We also learned about blocking the fabric. We also learned about correcting the grain of the fabric. Now, after we have done all these steps of washing, dry cleaning, or pre-shrinking or correcting the grain, next is, अब हमें lay करने से पहले fabric table पे we need to understand the right side of the fabric. So what is right and wrong side of the fabric? इंडस्ट्री में राइट साइड फैब्रिक को फेस ऑफ द फैब्रिक भी बोलते हैं या फिर फ्रंट ऑफ द फैब्रिक भी बोलते हैं, और जो रॉन्ग साइड है वो उसकी बैक साइड होती है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि राइट साइड कौन सी है और रॉन्ग साइड कौन सी है, सो दैट वट एवर मार्किंग्स वी आर डूइंग वी डू इट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक, जिससे गारमेंट जब कंस्ट्रक्ट हो जाए तो फ्रंट में विजिबल नहीं हो. So right side or face of the fabric should be identified before cutting. Often it is obvious, but sometimes careful examination is needed to identify the right side from inside of the fabric. One method of identification is the way fabric is folded. So कॉटन और लिनन जो होते हैं उनमें जो राइट साइड होता है उसका जो फेस होता है बाहर की तरफ होता है, और जो वुलन गार्मेंट्स होते हैं उनमें उसका जो फ्रंट होता है वो अंदर की तरफ होता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. मार्केट में जाते हैं, कोई सूट के लिए फैब्रिक परचेज करने जाते हैं, तो क्या होता है, बाहर की तरफ आपको प्रिंट उसका बिल्कुल ब्राइट दिखता है. दैट इज हाउ यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट डिजाइन एंड यू बाय इट. सो कॉटन और लिनन में बाहर की तरफ ब्राइट होता है डिजाइन, तो वो तभी वो बाहर की तरफ जो उन्होंने ट्यूब पे उसको रोल किया है वो फ्रंट साइड होता है, फेस होता है फैब्रिक का. और जो वुलन आप in case you've been to the market, so to purchase a woolen garment or a fabric to be more precise, तो woolen fabric में जो रोल किया होता है फैब्रिक सूटिंग्स के लिए बोल्ट के अराउंड, तो वो जब भी हमें दिखाते हैं वो अंदर से उसको ओपन करके दिखाते हैं.
बिकॉज जो वुल है इट इज ससेप्टेबल टू डर्ट एंड लिंट, सो दैट इज वाई उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, उसका जो फ्रंट होता है, सो दैट द फ्रंट इज clean and clear for us. Now here you can see there are a few examples that I've placed, जैसे corduroy velvet materials होते हैं, so इनके ऊपर कुछ उठा हुआ सा सरफेस होता है, शाइनी सरफेस होता है, एंड दैट इज हाउ वी गेट टू नो कि हाँ ये वाला फ्रंट है इसका, और बैक साइड उसकी फ्लैट होती है. प्रिंटेड फैब्रिक में प्रिंट फ्रंट साइड पे बिल्कुल ब्राइट होता है, बैक साइड पे डल होता है. दैट इज हाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट. So if fabric is rolled on tube faces to the inside. So tubes क्या होती है, यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हैं ना लंबी लंबी सी ट्यूब्स होती है जिनके अंदर हम रोल कर देते हैं फैब्रिक को. सो उसमें नॉर्मली जो है वो अंदर की तरफ आपका फैब्रिक का फ्रंट साइड रखते हैं. Others are smooth fabrics. Smooth fabrics are shinier, slicker, or softer on the right side. So smooth fabrics, like I told you, velvet, then it is corduroy, that's also soft, silk, that is very soft. So smooth fabrics का जो front side होता है वो हमें easily हम identify कर लेते हैं because it is little shinier onto the front side. It is softer onto the front side. Textured materials, textured का example again मेरा corduroy आ जाएगा because corduroy का जो surface है वो थोड़ा सा उसमें कुछ टेक्सचर सा होता है, लाइंस होती हैं, दैट इज हाउ वी गेट टू नो दैट इट इज the front of the fabric. Now here again I have few examples that I've placed of a textured fabric. Obviously इस texture और इस shine की वजह से हम उसको purchase करते हैं, so अगर वो wrong side पे होगा we would not like to have it. Now next is slubs. इधर एक पिक्चर है राइट कॉर्नर पे बेस में, दैट इज द एग्जाम्पल फॉर स्लब्स. स्लब्स क्या होते हैं, स्लब्स जैसे रेज्ड से यार्न्स आपके विजिबल होते हैं. सो स्लब यार्न्स होते हैं जो हम वीव करके ये फैब्रिक बनाते हैं. तो ये जो स्लब्स है ये फ्रंट साइड पे बहुत प्रोमिनेंट होते हैं. सो दैट इज हाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फैब्रिक. और ये स्लब्स मोस्टली आपको खादी फैब्रिक में मिलेंगे. ट्विल वीव, ट्विल वीव कौन सा होता है, डेनिम हम लोग पहनते हैं. सो डेनिम का जो वीव होता है दैट इज अ ट्विल वीव. आई हैव प्लेस्ड दिस पिक्चर ऑफ डेनिम एंड द ट्विल वीव आल्सो. आप लोगों ने ये किया होगा 11th में भी. सो ट्विल वीव का जो फैब्रिक है डेनिम, you would again find that onto the front side it is very 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 clear, एंड बैक साइड पे वो काफी इरेगुलर होता है. सो उससे हमें पता चल जाता है जो फ्रंट है उसमें थोड़े से नब्स या रेज्ड सरफेस दिखता है और बैक थोड़ा फ्लैट लगता है. लेट अस मूव टू फैंसी वीव. फैंसी वीव्स कैसे होते हैं जिनमें कुछ बॉर्डर्स जैसे ब्रोकेड के मिलते हैं, कांचीपुरम साड़ीज हम परचेज करते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है विच इज द फ्रंट एंड विच इज द बैक. सो फ्रंट साइड आपको बिल्कुल डिजाइन जो है अच्छे से फिनिश्ड दिखता है, बट बैक साइड पे आपको लूज यार्न्स दिखते हैं. दैट इज हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि फ्रंट क्या है और बैक क्या है. तो ये लूज यार्न्स तो बैक में होते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लोट्स. So these loose floats are visible onto the back of the fancy weave fabric. Next is printed designs. Printed fabrics में we see the front more brighter and back a little dull or blurred. The selvage, अगर by chance आपको किसी भी तरह से पता नहीं चल रहा कि ये मटेरियल का फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है, सो आप उसकी सेल्वेज भी देख सकते हो. सेल्वेज देख के क्या होगा, जो फ्रंट की सेल्वेज होती है वो स्मूथ होती है और जो बैक की होती है उसमें थोड़ी सी रफनेस होती है. सो दीज वर ऑल अबाउट आई वुड से वोवन मटेरियल्स टू बी मोर प्रिसाइज. हाँ प्रिंटेड तो नेट्स में भी हो सकता है, वोवन में भी हो सकता है, बट नेटेड मटेरियल को अदरवाइज हम कैसे उसका फ्रंट और बैक डिसाइड करते हैं. जो निटेड मटेरियल है उसको जब भी आप ले करोगे फैब्रिक को, यू वुड फाइंड दैट इट रोल्स. निट्स हैव अ प्रॉब्लम ऑफ रोल बैक, वो रोल करने लगता है. और रोल किसकी तरफ करता है, हमेशा जो फ्रंट साइड होती है उसकी तरफ रोल करता है. तो और दिस वुड ओनली बी पॉसिबल व्हेन यू स्टार्ट स्ट्रेचिंग द मटेरियल.
जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो यू विल गेट टू सी दैट इट स्टार्ट्स रोलिंग और कर्लिंग. The fabric face is generally more resistant to soil and abrasion, but you can use the wrong side out if you prefer its look. So obviously front side उसकी इस तरह से बनाते हैं फैब्रिक की कि वो आपकी जो अब्रेजन क्या होता है, रबिंग होती है, हमारी आर्म मूवमेंट होती है, सो उससे रब होता है फैब्रिक और उससे कई बारी पिलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है. जो छोटे छोटे से बॉल्स हमें दिखते हैं गारमेंट के ऊपर, दैट इज पिलिंग. सो जो फ्रंट है हम हमेशा उसको कोशिश करते हैं कि उसमें अब्रेजन रेजिस्टेंस ऐड करें जिससे कि द कस्टमर डजंट गेट दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. But still, in case you're liking the back side or the wrong side of the fabric more, you can always use that also. But you should know, आपको पता होना चाहिए कि right कैसे identify करनी है और wrong कैसे identify करनी है. When there is no visible difference between the sides, mark on the back with the chalk to avoid confusion. So अगर नहीं पता चल रहा, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मुझे नहीं पता चल रहा फैब्रिक का फ्रंट क्या है और बैक क्या है, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं चॉक से पहले मैं सेल्वेज के अराउंड चेक कर लूंगी. जहाँ पे ज्यादा शाइन कर रहा है वो फ्रंट है, और जहाँ डल है सेल्वेज वहाँ बैक है. Now after doing this, मुझे उसकी बैक साइड पे क्रॉस या एक लाइन ड्रॉ करना है so that I know that this is the wrong side or the back side of my fabric. So after understanding about the characteristics of the fabric, front and back, next step is pinning. Pin क्या करते हैं, हम पैटर्न को पिन करते हैं फैब्रिक के सरफेस पे. So pinning का भी एक तरीका होता है. Like here I have these pictures for you and you can see कि जो कॉर्नर्स होते हैं उन पे डायगनली पिन प्लेस किया है एंड ऑल ओवर जो एजेस है उस पे हमने परपेंडिकुलर टू द एज हमने प्लेस किया है पिन. दिस इज हाउ वी नीड टू प्लेस द पिन्स ऑल ओवर ऑन द सरफेस ऑफ फैब्रिक. तो अटैचमेंट करना है पैटर्न को इस तरह से करते हैं. फॉर पिनिंग पैटर्न टू फैब्रिक द जनरल ऑर्डर इज लेफ्ट टू राइट एंड फोल्ड टू सेल्वेज. सो हियर अगेन यू कैन सी जो फैब्रिक है उसका सेल्वेज राइट साइड पे है. तो आप हमेशा जब भी पिनिंग करेंगे आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और आपने क्या करना है उसको राइट साइड तक पिन करना है. इन द सेम मैनर जब आपने फैब्रिक को फोल्ड अगर करा हुआ है तो आपने फिर उसको फोल्ड से सेल्वेज की तरफ पिनिंग करनी है जिससे कि कोई भी बबल्स अगर बीच में आ रहे हैं तो वो आप सेल्वेज, बिकॉज वो ओपन एरिया है, वहां पे वो बबल्स को आप रिलीज कर सकते हो. Pin fold on grain line arrow first, then corners and finally edges. सबसे पहले किसको पिन करना है, जो ऑन जो फोल्डेड पार्ट है वहां पे आपने उसको पिन करना है. देन आफ्टर दैट यू नीड टू पिन द कॉर्नर्स एंड और फिर उसके बाद में आपने एजेस को पिन करना है. जो कॉर्नर्स को पिन करने से क्या होगा, आपका जो पैटर्न है वो हिलेगा नहीं. उसके बाद में आप उसको उसकी जो एजेस हैं उनको पिन करेंगे. Place pieces as close together as possible, overlapping tissue margins where necessary. So this particular sentence is for placement of pattern pieces. So ये तो एक पैटर्न प्लेस किया है बट हमें तो बहुत सारे पैटर्न्स प्लेस करने पड़ते हैं कटिंग के लिए. So when you are putting these pattern pieces together next to each other, you need to make sure that you place them real close to each other. और कहीं पे स्लाइड सा जो है ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो दैट्स परफेक्टली ओके इन केस वी विश टू डू इट इन दैट मैनर. Even small changes may result in the piece not fitting into the space apportioned to them. So you have to take care कि आपने जो एक मार्कर बनाया है सारी प्लेसमेंट करने के लिए पैटर्न पीसेस की, you have to follow it every time. Otherwise स्लाइड सा चेंज आप जब भी करोगे it is going to affect the placement of the patterns then. The efficient way to place pins is diagonally at corners and perpendicular to edges with points towards and inside cutting lines. So आपको मैं फिर से ये दिखाती हूँ इमेज. यहाँ पे आप देखिए कैसे पिन्स को प्लेस किया है.
जो कॉर्नर्स हैं उन पे डायगोनली पिन्स को प्लेस किया है, एंड जो एजेस हैं हर एक एज के परपेंडिकुलर प्लेस किया है पिन, और जो पिनिंग करी है वो कटिंग लाइन से अंदर की तरफ पिनिंग करी है, जिससे जब आप कट करोगे इस फैब्रिक को तो इट इज नॉट गोइंग टू create a problem in cutting also. For delicate fabrics like leather, vinyl, or very sheer fabrics like georgettes, chiffon, organza, in which pins could leave holes, take care to pin within seam allowances. So जो lightweight materials है, leather है, vinyl है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको उनको पिनिंग नहीं करनी है ऐसे, या अगर पिनिंग करनी है तो आपको फिर उसका जो सीम अलाउंस जो मार्जिन है वहां पे पिनिंग करनी है, वो जो गारमेंट का जो मेन पोर्शन है उस पे नहीं आनी चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू लीव होल्स ऑन टू द सर्फेस ऑफ मटेरियल. Use only enough pins to secure fold lines, grain line arrows, corners and notches. But again, starters के लिए you can use more pins, but industry में we do not use more pins, because जितने ज़्यादा pins आप लगाओगे उसकी shape fabric की उतनी distort हो जाएगी. So first time when you are developing a sample, obviously हो सकता है आपको ज़्यादा pins लगाने पड़े, but over a period of time one would learn to use lesser number of pins for tracing. A few pins more than generally used to pin a pattern piece in place may be needed for slippery or soft fabrics. So जहाँ पे जहाँ पे कोई sheer material है, slippery material है, soft material है, in that particular case हो सकता है मुझे ज़्यादा pins लगाने पड़े, but otherwise जो firm materials होते हैं, जो stiff materials होते हैं, there we don't need to add too many pins. A firm hand is required to be placed on the pattern to hold it in place. While cutting the fabric, this provides adequate control and ensures that fabric doesn't slip. So, need to make sure that apart from placing the pins, आपको एक अपना हाथ भी ऊपर रखना है फैब्रिक के और पैटर्न के when you are cutting it through, जिससे कि आपका जो मटेरियल है वो स्लिप नहीं करे, वो हिले डुले नहीं. After this, the next thing that we need to learn is fabric cutting. So fabric को एक तरीका तो हम लोगों को पता है कट करने का, वो है scissor. दूसरा तरीका है tearing. So here you can see कि उसमें एक छोटा सा कट करते हैं और उसको पूरा फाड़ देते हैं, ठीक है. और एक थर्ड टेक्निक है, वो है drawing a thread. Drawing a thread, ये लास्ट वाला जो पिक्चर है that is for drawing a thread. तो हम horizontal direction में उसमें फैब्रिक के 3-4 yarns को निकाल लेते हैं, वेफ्ट के 3-4 yarns को हम निकाल लेते हैं. ये आसान टास्क नहीं है, ये this is only possible in case you're using a thick weave fabric, जिससे आप आराम से उसको पुल कर सको. तो इस टाइप से हम गैप क्रिएट करते हैं, फिर एक छोटा सा कट देके हम टियर कर देते हैं फैब्रिक को. सो दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बट it is quite an effective process that's used in the industry as well. So checking fabric alignment comes next. Before manufacture, the fabric may have been pulled off grain so that grain lines are no longer at perfect right angles. A garment made with such fabric will not hang correctly, so realignment must be done before cutting. Bear in mind that not every off-grain fabric can be corrected, especially those that have water repellent or permanent press finish or a bonded backing. So the materials that have special finishing given on top of them, it's not easy to correct or unblock these materials. So in case you're using a fabric that has already been given some special finish, जैसे water repellent finish दे देते हैं, जैसे कि पानी वो soak नहीं करे ज़्यादा, या फिर permanently उसको एक particular pleat या finishing दी है. So in those kind of materials, what happens is
कि आप उनको ब्लॉक नहीं कर सकते. So in that case, you cannot correct the grain of these particular materials. So now let us see the different grains here on the surface of a fabric. So here, this is a fabric, a base fabric is shown, and you can see selvage on both the sides. ऐसा ही होता है हमारा फैब्रिक जो हम मार्केट से परचेज करते हैं. अब जो सेल्वेज के डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जो ग्रेन फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड एज लेंथवाइज ग्रेन. जो उसके हॉरिजॉन्टल फ्लो करता है, एज इन परपेंडिकुलर फ्लो करता है, लेंथवाइज ग्रेन, दैट्स अ क्रॉसवाइज ग्रेन. एंड the grain that runs in between them is a diagonal or bias grain. Now after grain, the next term is grain line. Now difference है grain में और grain line में. Grain तो है fabric की context में हम बात करते हैं तो grain term use करते हैं. It is used for woven materials. And grain line एक term है जो pattern पे बनाते हैं हम, और इस particular line के दोनों ends पे arrows बनी होती है. So यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आप हर एक पैटर्न के ऊपर एक लाइन देखेंगे और उस लाइन के दोनों एंड्स पे एरोज बनी है. So these are all grain lines. ठीक है. So what exactly is a grain line? A grain line is a line that is drawn from end to end on each pattern piece to indicate how the pattern should align with the lengthwise grain of the fabric. So पैटर्न को कैसे प्लेस करना है फैब्रिक पे, वो उस ग्रेन लाइन से पता चलता है. वी विल अंडरस्टैंड दिस जब मैं आगे वाली स्लाइड्स आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो दिस विल बिकम मोर क्लियर टू यू. Whichever be the direction the grain line is drawn on the pattern, it will always be placed parallel to the selvage of the fabric. This is very important कि कोई भी ग्रेन लाइन बनाया है पैटर्न पे, लेंथ, क्रॉस, बायस, हमेशा हमें जब उसको अलाइन करते हैं फैब्रिक पे तो वो पैरेलल होती है सेल्वेज के. तो देखते हैं इसको. 3 ग्रेन लाइंस यहाँ पे मेंशन है, स्ट्रेट, क्रॉसवाइज, बायस. ठीक है. स्ट्रेट ग्रेन लाइन क्या है? इट रन्स पैरेलल टू द सेल्वेज. ठीक है. सो ये बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेट ग्रेन लाइन आप बिल्कुल सेंटर के पैरेलल, ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जो बनाया है, दिस इज अ straight grain line. For garments to be cut on straight grain line, the grain line is drawn parallel to the center front or back of the garment along the length of the piece. So here you can see ये एक bodice block बनाया है और उसके center front के parallel ये straight grain line बनाया हुआ है. And when you place this on fabric, so you will see ये जो grain बनाया है, grain line, यहाँ पे पैटर्न के ये फैब्रिक की सेल्वेज के पैरेलल आ रहा है, बिल्कुल उसके पैरेलल प्लेस्ड है. नेक्स्ट इज अ क्रॉसवाइज ग्रेन लाइन. क्रॉसवाइज ग्रेन लाइन is marked on the pattern again, right? So for garment to be cut on crosswise grain, the grain line is drawn at right angle to the center front or back of the garment or across the garment width. अब यहाँ पे देखिए, ये जो सबसे नीचे वाला जो बॉडिस ब्लॉक है, यहाँ पे ग्रेन लाइन क्रॉसवाइज बनाया है. इसका मतलब क्या है कि ये पैटर्न को आप जब प्लेस करोगे फैब्रिक पे तो आपने इसको अलाइन करना है, पैरेलल रखना है सेल्वेज के. सो इसीलिए आई डिड मेंशन दैट पॉइंट that said that whatever be the grain line that's drawn on the pattern, you need to align it parallel to the selvage. So यहाँ पर ये जो लाइन है एरो वाली, ये सेल्वेज के पैरेलल प्लेस्ड है. नेक्स्ट इज अ बायस ग्रेन लाइन. अब जो गारमेंट का पार्ट डायगोनली कट करना है वो बायस ग्रेन उसके ऊपर बनानी, बायस ग्रेन लाइन उसके ऊपर बनानी पड़ेगी पैटर्न पे. So for garments to be cut on the bias, grain line is drawn at an angle of 45 degrees to the center front or back of the garment. So यहाँ पर देखिए जो सेंटर में इमेज है, this is the image that shows you a bodice block और diagonal grain बनाया हुआ है उसके ऊपर. यही grain line यहाँ पे जब हमने प्लेस किया पैटर्न को, so you can see ये grain line फैब्रिक की सेल्वेज के पैरेलल प्लेस करी है. सो ग्रेन लाइन मार्क करते हैं हम लोग पैटर्न पे
जिससे कि वो पैटर्न को हम अलाइन कर सके सेल्वेज के साथ में for cutting purpose. And the grain is basically the length, the direction of the yarn. So, और वो भी woven fabrics में ही follow करते हैं सिर्फ. Then is marking methods. अब आपको पता चल गया कि फैब्रिक को कैसे पैटर्न को फैब्रिक पे प्लेस करना है. पिनिंग भी आपने कर ली. अब आपको ये समझना है कि मार्किंग किससे करनी है, जिससे कि वो जो पैटर्न की जो निशान है, जो मार्क्स है, it stay there till the time you do the stitching. So marking is basically transfer of pattern markings onto the surface of fabric. और ये कब करते हैं? ये कटिंग के बाद में और पैटर्न को रिमूव करने से पहले करते हैं. ठीक है. सो पहले आप पैटर्न प्लेस करते हो, उसको पिन करते हो, फिर आप कट कर लेते हो फैब्रिक को. कट करने के बाद में नाउ यू डू दी मार्किंग. Many a times people even do the marking beforehand also. So that's perfectly okay in case you're just working on one or two garments. But if you're working on multiple garments, so industry mein when you're developing hundreds of garments at one point in time, so आप पहले उनको कट करते हो सारे एक जैसे पीसेस को, और फिर आप उनको जो पैटर्न है रिमूव करने से पहले उसकी मार्किंग्स ट्रांसफर करते हो हर एक फैब्रिक पीस पे. Common marking methods and their typical uses are discussed here. And what are they? In general, any device can be used provided it makes a precise, clear mark without disfiguring the material. So कुछ भी यूज कर सकते हो. आपको लगता है पेंसिल यूज करनी है, पेंसिल करो. पेन करना है, पेन करो. पर वो विजिबल नहीं होना चाहिए सबसे पहले फ्रंट साइड पे. तो आप जब गारमेंट को वॉश करें, पहने, तो दिस पर्टिकुलर मार्किंग शुड नॉट बी विजिबल ऑन टू द फ्रंट साइड. 2, वो जो फैब्रिक है उसकी शेप को भी खराब नहीं करना चाहिए, उसको डिस्टॉर्ट नहीं करे. तो ये भी ध्यान रखना है. ऑलवेज प्री टेस्ट अ फैब्रिक स्वॉच टू बी यूज्ड टू मेक श्योर कि ये मार्क उसके ऊपर करना ठीक है कि नहीं है. राइट. बट जो मार्किंग्स हमारे को बताई गई हैं वो सबसे पहले एक ट्रेसिंग पेपर और ट्रेसिंग व्हील है. So here are the images of tracing wheel, and you can use the tracing wheel for transferring the markings of the pattern onto the surface of fabric. And for that what we do is हम एक carbon paper नीचे लगा लेते हैं. So what we do, पहले fabric होता है, उसके ऊपर हम carbon paper रखते हैं, उसके ऊपर हम pattern piece रखते हैं, and then we move this tracing wheel on top of it. So using a tracing paper and wheel is a fast method that works best on plain, opaque fabrics. It is less satisfactory for multicolored fabrics and not recommended for shears. Marking shows through to the right side. So किसके लिए अच्छा है? जो opaque, जो थोड़े से मोटे थिक कपड़े हैं उनके लिए ट्रेसिंग पेपर, जो ट्रेसिंग व्हील है वो यूज करना सबसे बेस्ट है. मल्टी कलर्ड फैब्रिक्स के लिए अच्छा इसलिए नहीं है बिकॉज मुझे पता ही नहीं चलेगा, कहीं कहीं पे मार्किंग विजिबल नहीं होगी. बिकॉज या तो मेरे पास में ट्रेसिंग करने के लिए कार्बन पेपर वाइट कलर का है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, ये 4 कलर्स होते हैं. और फैब्रिक अगर मेरा प्रिंटेड है तो हो सकता है कहीं पे किसी पर्टिकुलर कलर का मार्किंग्स विजिबल नहीं हो. सो दैट्स वाई मल्टी कलर्ड के लिए अच्छा नहीं है, बट फॉर अ प्लेन फैब्रिक इट इज गुड. एंड देन अगर आप बहुत ही श्योर फैब्रिक यूज कर रहे हो, सो देन इट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ये उसकी फ्रंट से विजिबल होगा. So it is preferred to other methods for its convenience, but the wheel can rip tissue, thus limiting the reusability of a pattern. So अगर आपका पैटर्न जो है टिश्यू का बना है, टिश्यू पेपर का बना है, so then ट्रेसिंग व्हील जब आप ज्यादा यूज करते हैं तो वो फट जाता है. So it is not good for in that particular case. While tracing, keep a cardboard under the fabric to prevent marring of the surface beneath. Now what does this mean? जब आप ट्रेसिंग कर रहे हो तो आप अपने फैब्रिक के नीचे एक कार्डबोर्ड का पीस लगा लो. उससे क्या होगा, जिस सरफेस पे आप ट्रेसिंग कर रहे हो वो टेबल स्पॉइल नहीं होगी, नहीं तो उसके ऊपर भी ये
markings transfer हो सकती हैं. Use serrated wheel for most fabrics. Smooth wheel for those that are delicate and hard to mark or nap. So serrated wheel, ये serrated wheel के ही हैं pictures जो आपके fabric पे dots form कर देता है. Now, in case you plan to work with the help of, you plan to work on a smooth fabric. So a delicate material, light material, या फिर जिस material पे naps है. Naps is like towel के जैसे raised surface होता है. So in those kind of materials, it's advised to use a smooth wheel. So पूरा का पूरा ही smooth होता है, जैसे आपका पिज्जा कटर होता है ना, smooth होता है वैसे ही, पर इतना sharp नहीं होता. So when you move it on that surface, तो वो yarn को वहां से press कर देता है, and that is how you get to know कि ये वाला area follow करना है stitching के लिए. बट हम लोग जब स्कूल में या कॉलेज में हम लोग ट्रेसिंग करते हैं, हम लोग कार्बन पेपर भी लगा लेते to be on a safer side. The fabric folded with wrong sides together so that both layers can be marked simultaneously using double-faced paper or two sheets back to back. So what you can do is आपने दो फ्रंट्स है गारमेंट के, एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का. सो दोनों की जो मार्किंग्स हैं वो तो सेम ही होंगी. सो आप दोनों की मार्किंग्स को एक ही टाइम पे ट्रांसफर कर सकते हो by placing another carbon paper on the other side of the fabric. With fabric right sides together, layers are marked one at a time. Only dots are registered, but those can be connected if desired after the pattern is removed. So serrated wheel जब move करते हैं तो dots बन जाते हैं carbon paper के. So अगर मैंने blue color का carbon paper use किया है तो blue color के dots visible होंगे fabric पर. So what is important here is to choose the right color for your fabric. So if I'm working on a black color, it is advised to use a yellow or a white color carbon paper in that case. If I'm working on a white color fabric, again, white के ऊपर black या blue नहीं use करना चाहिए because वो उसकी front से भी visible होगा. So white के ऊपर yellow color use करना चाहिए, and that is how आप जब correct color use करते हो तो वो इतना visible नहीं होगा front side पे, and it would be easier for you to finish the garment as well. Apart from the tracing wheel, next is a tailor's chalk. Tailor's chalk इस टाइप से कुछ triangular या फिर square या फिर even circular shape में मिलती है, and ये waxy coating वाली भी होती है, regular smooth वाली भी होती है, and you can use them for tracing onto the surface of fabric. Another technique here is thread tracing. So thread tracing हम use करते हैं जब हम delicate या slippery material पे work कर रहे हैं. So we do not want the chalk marks to be visible. So हम chalks नहीं use करते उस case में. And here you can see darts बने हुए. Darts की जो tracing है वो thread tracing करी है. So this is how you can do the thread tracing. So thread tracing is another technique that can be used, but we use them largely करते हैं when we are working with delicate or slippery material. And what do we mark with this? जितनी भी markings हम chalk से या tracing wheel से करते, हम वही markings इससे भी करते हैं. So darts को mark करना है, seam allowances mark करने हैं, center front, center back, waistline, side seam, जो भी markings हम chalk से करते हैं वही same इससे भी करते हैं. Now once you have done the stitching, तो आप इसको pull करके निकाल सकते हो. It is really simple and easy to handle a thread tracing. But the technique that needs to be followed is, अगर एक जो light shade fabric है तो bright color का thread use करना चाहिए for thread tracing, so that once you're done with the stitching on top of it, machining कर लिया तो आप उसको easily pull कर सकते हो. अगर garment fabric के same color का thread tracing होगा, so it would become very difficult for you to identify कि आपने thread tracing कहाँ पे किया था, and then to also remove it. So this was about this particular chapter, that's 4.2, cutting preliminaries. I hope you liked it. Please do subscribe to the channel and share the video with the ones looking for
some help. Thanks for watching.